So, very good morning, everybody. Let us start with good morning, Bhavesh. Let us start with discussion of question answers. Hopefully, today it will be completed and we will be able to finish the syllabus. So, two questions we have covered yesterday. You will be typing the messages for answers. Okay. So, fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its temperature. Right, प्रेरणा, हर्षिया, good. Temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस हम कैसे मेजर करते हैं? By its temperature. Then B, temperature of boiling water cannot be measured by clinical thermometer. किससे नहीं मेजर होती है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर? बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर. Temperature is measured in degree Celsius. Temperature is measured in degree. ऋषिता, सेल्सियस के स्पेलिंग देखो, आपके सेल्सियस के स्पेलिंग गलत है. डिग्री सेल्सियस, राइट. No medium is required for transfer of heat by the process of. Rest of you, why you are not sending the messages? No medium is required for transfer of heat by the process of. Anybody else? किस मोड में हमें मीडियम की जरूरत नहीं है? हरजीत कौर, गलत है. रेडिएशन इज द राइट आंसर. कंडक्शन में तो हमें मीडियम चाहिए. ओके, कंडक्शन में हम क्या करते हैं? हीट कैसे ट्रांसफर होती है? मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर प्लेस टू अनदर प्लेस. रेडिएशन में हम बीच वाली चीज छोड़ देते हैं. वी डोंट नीड एनी मीडियम. Clear? A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. Right, Bhavya? Conduction. पुरंजे ठीक है बेटा. Pranav, right. Conduction is the right answer. Clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light colors. Dark. Right. Very good, Prerna. पुरंजे, dark. गुड भावेश, जास्मीन. डार्क कलर्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, मैच द फॉलोइंग. गुड ऋत्विक यादव, गॉट योर आंसर. लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है? ड्यूरिंग द नाइट. वेरी गुड प्रणव, नाइट. राइट कृष्णा. संकेत, नाइट. गुड. देन सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग day. Very good. Day. Dark colored clothes are preferred during winter. Prerna, good. Winter. Light colored clothes are preferred during. Yes, Bhavya, summer. Krishna, summer. Jasmine, summer. Right. Next question. Discuss why wearing more layers of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. बताइए. Who will answer? क्या रीजन है? Okay, you will raise your hands. Right. Who is going to answer? Puranjay. Let me ask Puranjay. Yes, Puranjay, speak out. Puranjay, you are not audible to me, beta. Very good, right answer. When we wear two layers of clothing, there is space between them and space gets filled with air, and air is a poor conductor of heat. As a result, it does not allow body heat to escape and we do not feel cold. Okay, we feel warm. Right? Next question. Look at the figure.
Mark where the heat is being transferred by conduction, convection and by radiation. Okay? हाँ जी. Who will answer this? Harjeet Kaur. Answer it. Hmm. Hmm. 6th question जशन. कौन सा मोड है यहाँ पे भव्या? बंसन बर्नर टू रेडिएशन. यस, ये जो फ्लेम है सुहाना, राइट. बर्नर से जो फ्लेम निकल रही है दैट इज रेडिएशन, क्योंकि वो गॉस को छोड़ के सीधा पैन पे जा रही है. राइट, मीडियम इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड. उसके बाद और कौन सा मोड है? यस कनव, यू कैन टेल. यस कनव. Transfer of heat from pan to water is conduction. Right. Right. Or within the water. नहीं बेटे. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू द वाटर इज कंडक्शन, और वहां से इसका जो हैंडल है दैट इज कन्वेक्शन. राइट. यस भवेश. यस भवेश, स्पीक आउट. राइट राइट राइट. रेडिएशन बेटा, जो फ्लेम आ रही है बर्नर की दैट इज रेडिएशन भव्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. Who will explain? जहाँ पे गर्मी ज्यादा है वहां बोला जाता है कि घर की जो दीवारें हैं बाहर की वो वाइट करो. आकृति विल आंसर. आकृति. हाँ बोलो. Because white color reflect heat, it does not allow heat to come inside. So हाँ, in summers we do not feel much heat. हाँ, that is why outer walls of houses are painted white. Who else will explain in a better way apart from Akriti? Bani, would you like to answer? Because white color reflect the heat, right? So we will not feel much hotter. Instead we will feel cooler. Okay Bhavya? Next question. 1 liter of water at 30 degrees C is mixed with 1 liter of water at 50 degrees C. The temperature of the mixture will be. Jashan would like to answer.
Yes, Jashan beta, answer it. Why? Reason भी बताओ. Why? 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 ये देखो बेटा, सिंपल है. एक मिक्सचर है, 1 लीटर वाटर है 50 डिग्री सी पे, राइट. उसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया जो है 30 डिग्री सी पे. तो अब हमारा प्रिंसिपल का क्या कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कब होगा, हॉटर टू कूलर सराउंडिंग्स. जो हॉट है वो कूलर में जाएगा, ठीक है. यानी कि व्हाट विल हैपन इज 50 डिग्री वाला जो है, जो इनका मिक्सचर बन गया, वो इसको भी हीट कर देगा और खुद अपनी हीटनेस लूज करेगा, राइट. सो ये बढ़ेगा तो किसी हाल में नहीं. मींस 50 और 30 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर हो जाएगा, राइट. इज दिस क्लियर कृष्णा? गॉट इट? नेक्स्ट, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, who will explain? Answers तो I know you all have NCERT solutions. Samrat, would you like to answer bete? Samrat? Why? Explain also. हाँ, चलिए म्यूट योरसेल्फ, मैं बताती हूँ. उसने कहा एक मग है जिसमें वाटर इज 40 डिग्री सेल्सियस. Here we are throwing a ball whose temperature is 40 degrees Celsius inside the water. Means both the things they have same temperature, right? No one is hotter, no one is colder. So they will not lose their temperature, none of them. They will remain same. So heat will not flow from ball to water, neither it will flow from water to ball. Right, so it will remain same. Okay, there will be no heat transfer. Next, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. एक वुडन स्पून है, आइसक्रीम के कप में हमने डिप कर दिया. इट्स अदर एंड, हु विल आंसर? भावेश विल आंसर. भावेश, you have to explain also. Why? Explain, Bhavesh. Very good. Because wood is insulator, so there will be no heat transfer. Okay? कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही कूलनेस ट्रांसफर होगी. That is why it will not get cold. Right? Next, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, who will answer? Explain. Yes, Pranav. Why? Explain also. Yes, because copper is better conductor of heat, तो उनका बॉटम कॉपर का बनाया जाता है ताकि उस पे ज्यादा हीट ट्रांसफर हो, राइट. देन द स्टेनलेस स्टील, राइट. विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस. वन थिंग मोर स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू, प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक सेंड करनी शुरू करो. तीनों चैप्टर्स हो गए हैं और जो डायग्राम्स हमने क्लास में करे हैं वो कॉपीज पे बने होने चाहिए.
यस कनव बोलिए बेटा, प्लीज टाइप द मैसेज। राइट, सो मैं आपको एक बार डायग्राम्स बता देती हूँ, आप नोट कर लो। प्लीज स्टार्ट टिकिंग द डायग्राम्स। लेसन नंबर 1 से आ जाओ। फ्रॉम लेसन नंबर 1, हरी अप, इट शुड बी देयर इन योर फेयर नोटबुक्स। चाहे पीछे क्वेश्चन दिया है चाहे नहीं दिया है, और जिन्होंने कॉपीज भेजी हैं बट डायग्राम्स नहीं बनाए, वो दोबारा से डायग्राम बना के पीडीएफ बना के भेजो फटाफट। आज के आज ये काम होना चाहिए। मैंने आज रात को डिफॉल्टर्स निकाल देने हैं, तीनों चैप्टर्स चाहिए मुझे। इज दिस क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर स्टोमेटा की डायग्राम, नोट कर लो जी। स्टोमेटा की डायग्राम, सेक्शन ऑफ लीफ, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। राइट, ये है। उसके बाद लेसन 2 आ गया। लेसन 2 में देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टाइप्स ऑफ टीथ, देन उसके बाद ruminant stomach, ruminant stomach, then mode of nutrition in amoeba। हमने अमीबा करा है, अमीबा करना है हमने। कमिंग टू फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में हमने क्या किया है? थर्मोमीटर बनाओ दोनों, एक में वी विल बी शोइंग द किंक क्लिनिकल में, और दूसरे में विदाउट किंक। राइट, देन वी विल बी डूइंग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। दैट्स इट। क्लियर जी? इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इस चैप्टर की एक्टिविटी देख लीजिए, प्लीज अपनी कॉपीज निकालिए। राइट डाउन एम, एम, हाँ जी, डू यू हैव द सिलेबस विद यू? हीट ट्रेवल वाली एक्टिविटी क्या है? सी, सात्विक, नेम ऑफ थर्मोमीटर विदाउट किंक कौन सा है? इट इज लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर। ओके, टू स्टडी द, हाँ कनव बताती हूँ बेटा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चंस नोट कर लो। क्वेश्चन 1, 2, 5, 7, ये 4 क्वेश्चंस हैं और डायग्राम्स हैं। राइट, अब लिखिए एक्टिविटी। एम टू स्टडी द flow of heat, to study the flow of heat through a metal strip। ठीक है, पेज नंबर 40 ओपन कीजिए अपनी बुक का, एक्टिविटी 4.6, पेज नंबर 40, एक्टिविटी 4.6। आर यू एबल टू सी? वेरी गुड, विदाउट बुक्स बैठे हुए हैं, लेने जा रहे हैं अभी बुक्स। वेरी स्मार्ट। You don't have copies with you, you don't have pencils with you। हाँ जी, things required, Karna would you like to answer things required? पेज नंबर सम्राट 40 है, एक्टिविटी 4.6। कनव थिंग्स रिक्वायर्ड क्या होंगी इसकी?
आंसर मी। हाँ। आंस- हम्म। हम्म। हाँ जी ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो, एक मैंने आपको करवाई थी जिसमें मैंने नेल्स लगाए थे वैक्स के ऊपर, रिमेंबर। इधर आप नेल्स लगा के कर सकते हो या आप नेल्स के बिना कर सकते हो। सो दिस इज द एक्टिविटी। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, say of iron or aluminium, fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. Right? Now heat the other end of the rod and observe. अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्जर्व क्या किया हमने? द वैक्स पीसेस बिगिन टू फॉल। अगर आप नेल लगा देते हो वैक्स के साथ तो नेल फॉल करना शुरू कर जाएगी। द वैक्स पीसेस बिगिन टू फॉल वन बाय वन। द वैक्स विच इज नियरर टू द कैंडल will fall first of all. इसका रीजन लिखो। रीजन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। राइट डाउन द रीजन। नित्या, राइट डाउन द रीजन। The burner is placed below the free end. The burner is placed below the free end of copper rod. This end gets heated first, whereas the other end remains cold. The heat transfers from hotter end of copper rod to the colder end to the colder end, melting the wax which falls off one by one. ऑब्जर्वेशन का ना बुक में दी हुई है। Wax pieces will start falling one by one, starting from, ये ऑब्जर्वेशन है, starting from the end which is nearer to the candle. Okay? हो गया, रीजन हो गया। नाउ कंक्लूजन। Heat is transferred from hotter end to colder end by conduction. ओके जी, बाय कंडक्शन। डन। डायग्राम आपको मैंने करवाई थी। रीजन लिखो ऋषिता, रीजन अपनी तरफ से करवा रही हूं मैम, मैं भूल जाती हूं। बर्नर इज प्लेस्ड बिलो द फ्री एंड ऑफ कॉपर रॉड। रीजन लिख लो जिनका रह गया है। बर्नर इज प्लेस्ड बिलो द free end of copper rod. This end gets heated first, and melt the wax. The heat transfer
from hotter end to colder end gradually, which make the wax fall. Right? Diagram you will draw. ये जो बुक में बना हुआ है इधर वो ड्रॉ कर लो या वो ड्रॉ कर लो जो मैंने करवाया था क्लास में. इज दिस क्लियर? एक्टिविटी 1 हो गई. एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2. To study the effect of saliva on starch. To study the effect of saliva on starch. हाँ जी, this is given in your book, page number 14. See page number 14. हाँ जी, ये देखिए इसने क्या कहा है. He is saying, where's my duster? Okay. लिख लिया आपने? एम लिख लिया. To test the action of saliva on starch, he is saying, take 2 test tubes. Test tube A, test tube B. Right? In A test tube, page number बेटा 14 है. 1414. In test tube A, he is saying, put boiled rice. इसमें हमने boiled rice डाल दिए. Right? Here in test tube B, add boiled rice which are chewed. ये राइस आपने च्यू करके फिर इसमें डालने हैं. इज दिस क्लियर? 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, एक में बॉइल्ड राइस, दूसरे में बॉइल्ड च्यूड राइस. देन ऐड सम वाटर. वाटर डाल दिया दोनों में. ये वाटर है. देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. ये आयोडीन डाला. इसमें भी आयोडीन डाला. राइट? व्हाट विल हैपन? ऑब्जर्वेशन क्या है? नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन. आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन नहीं दी हुई. नोट करो फटाफट. इन टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस विल टर्न ब्लू ब्लैक. इसको आप ब्लू ब्लैक शो कर दोगे. ओके? हियर इट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. ओके? नाउ व्हाट विल हैपन? रीजन. रीजन लिखिए. रीजन लिखिए. इन टेस्ट ट्यूब में
boiled rice contains starch. Boiled rice contains starch which is converted into blue black color on adding iodine. Right? In test tube B, due to chewing, बेटा नव्या बोल तो रही हूं. In test tube A, boiled rice convert to blue black due to presence of starch, क्योंकि starch present है. In test tube B, because we have chewed it, saliva act on starch and it gets converted into sugar. क्योंकि हमने करा ना, जब हम मुंह में डालते हैं तो सलाइवा उस पे एक्ट करता है. सलाइवा एक्टेड ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू शुगर. दैट इज व्हाई व्हेन वी ऐड आयोडीन सॉल्यूशन इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. ये आपकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बुक में नहीं दिए थे, मैंने आपको करवा दिए हैं. राइट? ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा. राइट? Is this clear? Okay students, एक एक्टिविटी रह गई है that we will do tomorrow. Plus we will be starting the revision. Hopefully मुझे आज रात तक तीनों चैप्टर्स की कॉपीज along with diagrams आ जाएंगी. I don't want to call the defaulters again and again because इस बार मैंने कॉल नहीं करनी, मैंने सीधा प्रिंसिपल मैम को नेम्स देने हैं. Clear? Okay students, bye. Get ready for your next class.